Hello students, how are you students? Again you are warm welcome in this next video. This is the video series of chapter 1 reproduction in organism for class 12. So students, in this video we are going to discuss about the reproduction in flowering plants. In earlier videos we have discussed about the reproduction in lower organism, just like unicellular organism, fungi, algae, etc. So students, in this video we will discuss how reproduction occur in flowering plants because it is the category of advanced plant. So these are three ways. So let's discuss about these ways of reproduction in flowering plant. Reproduction occurs in three ways. Reproduction, asexual reproduction. This mode of reproduction mostly found in lower plants. So you know very well, mostly found in lower plants. Just mostly we have discussed about it. So algae, bryophytes, pteridophytes. In 11th class you have studied it in detail. Bryophytes and pteridophytes, how reproduction occur in these categories. So let's discuss next way, vegetative propagation. So it is the video especially for this topic, vegetative propagation. So keep watching it till ending. It is very interesting. So students, let's discuss about it. This is also mode of asexual reproduction mostly found in flowering plants. In this mode, new plants formed from the stem, root, leaves of parents. So sexual reproduction, it is the mode of reproduction in which two organisms participates and they produce their gametes which fuse to form new plant. So we will discuss it in next video. So let's go to the next slide and we will discuss in detail about the vegetative propagation. Students, this is very important because many of the questions they are found in NEET, AIIMS as well as in your board exam. So minute points are very important. So let's discuss about these points, what they are. Vegetative propagation. First, you must know about what is vegetative propagation. So students, I want to tell you that each and every organism, means each and every multicellular organism has two parts of body. Body has two parts which are, so students, you know, body is divided into vegetative part and reproductive part. So each and every living organism is divided into two parts, means body is divided into vegetative part and reproductive part. So what they are? So let's discuss about it. Vegetative parts are the parts which are found in whole body except the reproductive organs. Means reproductive organs अगर हम इनको छोड़ दें, reproductive organs को छोड़ करके बाकी सारे parts जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं. जस्ट लाइक इन आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम लोग छोड़ दें तो होल बॉडी इज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ बॉडी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे इंक्लूड्स इन reproductive parts. So each and every multicellular organism is divided into these two parts. So what are the vegetative parts? You know very well now. So let's discuss about the vegetative propagation. Propagation, it is the term, it is derived from the culture or growing. So vegetative parts, when the living organism is formed from the vegetative part, this process is known as the vegetative propagation. Means the living body is growing from the vegetative part of the individual. So let's discuss in detail about vegetative propagation. Is an asexual method of plant reproduction. So you know very well, asexual reproduction we have discussed in earlier slide. This occurs when plants grow and develop naturally without any human interference. So you know, vegetative propagation, when it occurs in two ways. It also occurs in two ways, when human interfere does not occur and human interfere is occurred. So it is divided into two types. What are these two types? Natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. So we can write here natural and artificial. So natural and artificial vegetative propagation. First we will discuss about the natural vegetative propagation, then next about the
artificial vegetative propagation. So let's discuss about the natural vegetative propagation. When vegetative parts of the plant naturally produce new plant, naturally means by root, by stem, by leaves, these all are the vegetative part. Which one is the reproductive part? Flower. अगर हम फ्लावर को छोड़ दें तो सारे प्लांट के पार्ट कैसे पार्ट होंगे? वेजिटेटिव पार्ट. तो फ्लावर की तो यहाँ पर कोई भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, कोई डिस्कस यहाँ पर फ्लावर का नहीं करेंगे, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं by roots. When roots of the plants produce new organism, for example sweet potato, you know very well sweet potato. Sweet potato is the example of reproduction or vegetative propagation by root. So natural vegetative propagation by root. Sweet potato you have no, you know students, it is the just like it. So it is purple or brownish in color, you know very well. If you don't know that, I will show you the picture. So this is the root and it forms tuber like structure. So it is just like tuberous root, and from root buddings occurs. Bud is formed and this bud forms the new individual. So just like it. So new organism is formed when from the roots. Naturally it is known as the natural vegetative propagation by root. Next, natural vegetative propagation by stem. The vegetative plants structures arising from the stem are known as the rhizome, bulb, runner, tubers. These all the structures you have studied in 11th class, the modification of stem. So what are the rhizome? You know, bulb, runners. So what they are? Rhizomes are the structure which are underground. These are the part of stem. These are underground and obliquely placed. So these are the rhizomes. And bulbs, you know, onion very well. So this is the bulb like structure. So it is bulb of onion. So which is the stem? In middle portion of the onion, it is the stem, and these are the scaly leaves. So this stem forms the new bulb or new plant. That is why it is the example of natural vegetative propagation by stem. Runners, which stems are run on the parallel of soil surface. So these are the runners. They form the new individual just like it. So these are runners. Tubers, you know, potato is the example of tubers. So these produce new plant. You know very well that. Banana, potato, ginger, these are other examples of these. So banana, you also know that banana, it also produce the new plant by the branch of this one, this stem. So banana, potato, ginger. By leaves, leaves of new plants get detached from the parent plant and develop into new plant. जब parent plant से ये leaf detached हो जाती हैं, इसमें bryophyllum और begonia. So begonia is another example. Bryophyllum and begonia are the example of this one by leaves. When leaves, on the margin of leaves, notches are present. These notches produce the bud, and these buds form the new individual. And this is known as the natural vegetative propagation by leaves. So students, let's go on next page. So these are the example of नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ. अगर हम पोटैटो को ज़मीन से ना निकालें तो इस तरह से ये बर्ड का फॉर्मेशन करेगा और नेचुरली अपने आप नए प्लांट्स का फॉर्मेशन इन बर्ड से हो जाएगा, जिसको हम लोग आइज़ ऑफ पोटैटो कहते हैं, पोटैटो आई कहते हैं. उनसे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. ये आप लोग जानते ही हैं. जिंजर है तो जिंजर से भी जो आप यहाँ पर बडिंग देख रहे हैं, ये बर्ड जो निकल रही हैं, इन बर्ड से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है. ये बल्ब आप लोग देख रहे हैं. फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये क्या एग्जांपल है किसका? ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम में यहाँ पर जो नॉच हैं ये बर्ड का प्रोडक्शन करेंगी और ये बर्ड्स फाइनली नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी. ये ऑफसेट है. इट इज़ द ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्टेम. ये स्टेम का फॉर्म है, तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं. चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं.
Artificial vegetative propagation. So students, artificial vegetative propagation, it is the mode of asexual reproduction, or you can say it is the mode of vegetative propagation in which human interfere is required. So this is known as the artificial vegetative propagation. So let's discuss about it. Artificial vegetative propagation is a type of plant vegetative propagation that involves human intervention, means interfere of human is required. Artificial method of vegetative propagation is carried out by human on the field and laboratories. तो laboratory और field ये दोनों में होता है. The most common type of artificial vegetative propagation techniques include cutting, layering, grafting, tissue culturing. So these are the different types of methods or ways of artificial vegetative propagation. So you can also look in the background pictures. Also we can understand from here in detail. So let's go on the next page. So students, here first we will discuss about the cutting. So what is cutting? In this method हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लांट है और उस एक प्लांट को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, उसकी एक ट्विग टहनी को काट देते हैं इस तरह से, और काटने के बाद, कट करने के बाद उसको थोड़ा सा नीचे से पॉइंटेड कर देते हैं और फाइनली उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉइल में इसको पॉटेड कर देते हैं. जब इसको हम लोग पॉटेड कर देते हैं, सॉइल में इसको हम लोग लगा देते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से एडवेंटिटियस रूट आप लोग जानते हैं, ये ग्रो करने लगती हैं और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करती हैं, जो प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करती हैं, और फाइनली प्लांट ग्रो करने लगता है. मतलब एक टहनी प्लांट की, एक ट्विग नेक्स्ट प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है ह्यूमन इंटरफेयर की हेल्प से, तो इसको हम लोग कटिंग कहते हैं. इन दिस मेथड अ हेल्दी यंग ब्रांच विद अ फ्यू नोड्स and internodes is cut off and most of its leaves are removed. Now the cut end is stuck into some good moist soil. Care is taken that the soil remains moist. तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसका जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो फिर कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगी. जो आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा था कि जो ट्रांसपायरेशन पुल है वो मतलब एक कॉलम जो है वाटर का वो टूट जाएगा और वाटर की सप्लाई रुक जाएगी. द कटिंग विल देन डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रोपेगेट प्लांट लाइक रोज, सुगर कैन एंड पाइनएप्पल. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कटिंग. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वे और नेक्स्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दिस इज द लेयरिंग. सो व्हाट इज लेयरिंग? इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो प्लांट होता है उसके जो एक सॉइल के पास में जो ब्रांच, सॉइल सरफेस के पास में जो ब्रांच होती है उसको हम लोग इस तरह से बेंड करके और फाइनली उसको एक लेयर के नीचे, सॉइल की एक लेयर के नीचे दबा देते हैं, और उसके जो लीफ वाला पोर्शन होता है उसको इस तरह से एक किसी भी सपोर्ट के थ्रू उसको इरेक्ट कर देते हैं, सीधा रखते हैं. फिर उसके बाद हम लोग कुछ समय बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह से एडवेंटिटियस रूट निकल आती हैं. ये एडवेंटिटियस रूट, दीज आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. फिर ये प्लांट ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ से कट भी कर दें तब भी अपने आप ग्रो करते रहेगा, क्योंकि इसमें रूट्स का डेवलपमेंट हो गया है और वाटर मिनरल जो यहाँ से इसको मिल रहे थे वो अब यहाँ से मिलने लगेंगे. तो दिस इज द वे टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय द लेयर. So this process is known as the layering. In this method, a young branch is bent and pressed into moist soil. After some time, roots develop from the covered part. This is called a layer. Now the branch can be cut from the parent and a new plant is produced. This method is used to propagate plants such as jasmine, black raspberries, etc. So these are the example of layering. So let's go on the next page. Next method is grafting. So what is grafting? Students, इसमें हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज एक प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट लेते हैं, तो मान लीजिए 2 पॉटेड प्लांट इस तरह से ये लगे हुए हैं. 2 प्लांट में हमने क्या किया, एक दूसरा प्लांट है और इस प्लांट को भी हमने पॉट में लगाया हुआ है. तो हम क्या करेंगे कि इस प्लांट के टहनी को या इस प्लांट के स्टेम को यहाँ से कट करके और इसमें हम लोग ग्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब इसमें हम लोग लगा सकते हैं. तो एक ही प्लांट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को शो करता है. जैसे मान लीजिए एक ब्लैक रोज़ है और एक जो है रेड रोज़ है,
तो हम ब्लैक रोज़ की ग्राफ्टिंग करेंगे किसमें, रेड रोज़ में, या फिर कोई दूसरे प्लांट में हम लोग इस तरह के दो करैक्टर को ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब चलिए समझते हैं। इसमें हम लोग एक को बी शेप में इस तरह से काटते हैं और एक को इस तरह से बीच में थोड़ा सा इसमें गैप बना देते हैं जिससे कि ये इसमें फिट हो सके। तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसको वी शेप में काटा हुआ है। नीचे ये जो हमारा है इसको भी हम लोगों ने इस तरह से गैपिंग यानी वी शेप में काटा हुआ है और इसको हम लोगों ने इस तरह से पॉइंटेड काटा हुआ है। तो इसको ग्राफ्ट कर दिया गया फाइनली और इसको ऊपर से टाइटली रैप कर दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि इसके जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो इससे इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और नीचे से यानी कि ये प्लांट कहाँ लगा होगा, पॉट में, और इसको हमने दूसरे प्लांट से लिया होगा। तो नंबर 2 प्लांट और नंबर 1 प्लांट, यानी नंबर 1 प्लांट का जो हम पोर्शन लेते हैं नंबर 2 प्लांट के ऊपर, यानी जिसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है, तो इसको इसके नंबर 2 के ऊपर ग्राफ्ट किया जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियोन, और इसको कहते हैं स्टॉक। तो ये सियोन को स्टॉक में इंसर्ट करने के बाद में फाइनली इसको रैप जब कर दिया जाता है तो अब इस प्लांट को यानी कि इस टहनी को, इस प्लांट पार्ट को यहाँ से मिनरल वाटर मिलने लगते हैं। तो ये आपका ग्राफ्ट हो गया। तो इस तरह से एक प्लांट में दो करैक्टर आ जाते हैं। जनरली ये नर्सरीज में ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है। इट इज़ अ हॉर्टिकल्चरल टेक्निक where white tissues of plant are joined so as to continue their growth together. The upper part of the combined plant is called the scion, while the lower part is called the root stock. So आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर these are very important terms, scion and stalk. So keep remember. Students, let's discuss the next method. What is it? Student, this is the tissue culture. So what is tissue culture? Tissue culture, it is the method by which any tissue of the plant or a single cell or tissue, they are capable to produce the new plant in laboratory in aseptic conditions. तो इस प्रोसेस से हम लोग किसी सेल से और किसी टिश्यू से नए प्लांट का जब फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। चलिए डिटेल से डिस्कस करते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट सेल टिश्यूज, प्लांट फ्रॉम सेल टिश्यूज और एन आर्गन इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशंस प्रोवाइडेड विद कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी जो सेल है एक प्लांट का या जो टिश्यू है तो उसको हम लोग ग्रो करा रहे हैं कहाँ, लैब में। और लैब में सारी कंडीशन कैसी हैं, कंट्रोल्ड हैं। तो यहाँ पर एसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, एसेप्टिक का मतलब जर्म फ्री, यानी जर्म फ्री कंडीशन को हम लोग एसेप्टिक कंडीशन कहते हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट प्लांट को नेचुरली रिक्वायर्ड होते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग देते हैं। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये एक बीकर है और इस बीकर में जितने भी प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जितने रिक्वायर्ड होते हैं उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका जो प्लांट पार्ट जिसको हम प्लांट से लेते हैं ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए नया, उसको एक्सप्लांट कहते हैं। तो एक्सप्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम से ये सेलुलर ग्रोथ करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज कैलस। सो कैलस इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्सप्लांट। तो देखिए एक्सप्लांट क्या था, मान लो सिंगल सेल हो सकती है या फिर छोटा सा टिश्यू हो सकता है, लेकिन जब ये सेल डिवीजन करता है इसमें हार्मोन्स भी, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है हमारा, न्यूट्रिएंट मीडिया ये क्या है, एक लिक्विड मिक्सचर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है। इसमें हार्मोन भी दिए गए हैं। तो हार्मोन्स आप लोगों ने फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन जो पढ़े थे 11th क्लास में, वो इसमें इंसर्ट किए जाते हैं जिससे ये टिश्यू बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरह से ग्रोथ करके। तो इसी को जब इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, एक मास ऑफ द सेल्स है, तो इसको हम लोग कैलस कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, एक्सप्लांट और कैलस, दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म। अब कैलस जब इसमें डिफ्रेंशिएशन होने लगता है तब इसको एम्ब्रॉइड कहते हैं। एम्ब्रॉइड फिर जब इसमें रूट और शूट का फॉर्मेशन होना जब शुरू होता है तो इसको एम्ब्रियो कहते हैं। फाइनली ये प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये प्लांटलेट, अभी तो ये प्लांटलेट बनाएगा, ये प्लांटलेट टेस्ट ट्यूब में है, बहुत छोटा सा है। फिर इसको फील्ड ट्रायल के लिए ग्रीन हाउस में भेजा जाएगा। तो ग्रीन हाउस में भेजा जाएगा इसको ट्रायल के लिए, फील्ड ट्रायल के लिए। फाइनली ग्रीन हाउस से फिर फील्ड में भेजा जाएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर एसेप्टिक कंडीशन में होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या होता है, एक्सप्लांट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट लाइक सेल, टिश्यू, ऑर्गन और
grown in a test tube containing artificial nutrient medium under sterile condition. Sterile condition मतलब aseptic condition. Aseptic condition means the germ free condition. So you can understand very well by this figure also. I think you are understanding. So let's discuss about the advantage and disadvantage of tissue culture. So what are the disadvantage of tissue culture and advantage of tissue culture? First we will discuss advantages. Large number of plants from a small or single cell can be produced in short duration. यानी कम टाइम में हम लैब में बहुत ज़्यादा प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और छोटे से टिश्यूज़ या सेल से. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये हो गया इम्पोर्टेंस. दूसरा, मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स लाइक टोमेटो, एप्पल एंड बनाना हैव बीन डेवलप्ड बाय टिश्यू कल्चर. तो आप लोग जानते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू आजकल ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है. तो बनाना और टोमेटो, ये एप्पल वगैरह इनसे आजकल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ फ्री वैरायटीज़ थ्रू मेरिस्टेम कल्चर. मान लीजिए अगर कोई भी पूरी स्पीसीज़ खतरे में है, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, टोमेटो का ही प्लांट ले लीजिए, हालांकि अभी है नहीं, लेकिन हम मान लीजिए कहते हैं टोमेटो का प्लांट अगर ये खतरे में है और इस स्पीसीज़ का लास्ट प्लांट बचा है, तो लास्ट प्लांट है ये हमारा, और इस लास्ट प्लांट को अगर हमने नहीं बचाया तो पूरे अर्थ पर इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा. अब ये ख़त्म क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. पूरे प्लांट में इन्फेक्शन है, लेकिन आप लोग जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हर क्षण डिवाइड करते रहते हैं, हर पल डिवाइड करते रहते हैं. तो यहाँ पर जो नए टिश्यू बनेंगे अभी उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा. तो उन्हीं टिश्यूज़ को लेने के बाद जब हम लोग लेबोरेटरी में नया प्लांट बनाते हैं तो वो तो डिजीज़ फ्री टिश्यू था, तो जो नया प्लांट बनेगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, डिजीज़ फ्री हो जाएगा. तो इसीलिए हम डिजीज़ फ्री प्लांट का फॉर्मेशन इससे करते हैं, डिजीज़ फ्री वैरायटी बनाते हैं. डिसएडवांटेजेज ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है? डिसएडवांटेजेज, टिश्यू कल्चर कैन रिक्वायर मोर लेबर एंड कॉस्ट मोर मनी. तो आप लोग जानते हैं लेबोरेटरी में होता है तो न्यूट्रिएंट मीडिया इतना आसान तो नहीं होता है. बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो आर्टिफिशियली हमको प्रोवाइड कराने होते हैं उनको हम लोग केमिकल्स के फॉर्म में लेते हैं. दीज आर वेरी कॉस्टली. So there is a chance that the propagated plants will be less resilient to disease due to type of environment they are grown in. तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो प्लांट हम लोग बनाते हैं लैब में, तो लैब में बने हुए प्लांट जो होते हैं वो रेजिलिएंट नहीं हो पाते हैं. यानी कि ये बहुत कम रेजिलिएंट, यानी कि इनको कोई भी डिजीज़ बहुत आसानी से अटैक कर सकती है. क्यों? क्योंकि ये कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो किए हुए हैं, लिमिटेड और कंट्रोल्ड या फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो किया है इन लोगों ने. तो आप लोग जानते हैं जैसे कोई बच्चा होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाए, किसी बच्चे को घर में बिल्कुल कैद रखा जाए, बिल्कुल उसको घूमने फिरने ना दिया जाए, छोटे से उसको बचपन से आर्टिफिशियली सारी कंडीशन प्रोवाइड किया जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट में उनका कांटेक्ट बहुत कम हो, तो ऐसे बच्चे को बीमारियां ज़्यादा लगती हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत कम होती है. तो इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्लांट लेबोरेटरी में ग्रो कराए जाते हैं, इनके बाहर फील्ड में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दूसरी डिजीज़ बहुत जल्दी अटैक कर जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल. लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ asexual reproduction, because asexual reproduction it is going to finish, so that is why we have to discuss about the advantages and disadvantages of asexual reproduction. So first we will discuss advantage. What is advantage of asexual reproduction? We have discussed in earlier slide we have discussed the advantage and disadvantages of the tissue culture, but now here we will discuss about the advantage and disadvantage of asexual reproduction. So keep it in mind. It is quick process, in asexual reproduction it is a quick process, so easily in short duration we can form the more and more individual. Only one parent is needed, no need of two parents, no gametes needed, कोई gamete की ज़रूरत नहीं होती है. All good characters passed on, यानी कि जो गुड करेक्टर हम लोग चाहते हैं, जैसे मान लो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाना चाहते हैं किसी पेरेंट प्लांट की, तो बना सकते हैं हम लोग बिल्कुल. सो नो डिस्पर्सल. पोटैटो ट्यूबर्स, यानी कि इनका कोई डिस्पर्सल की ज़रूरत नहीं होती है. आप लोग जानते हैं जैसे ग्रो इन सेम फेवरेबल एनवायरनमेंट एज पेरेंट, तो बिल्कुल जैसे पेरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में, उसी एनवायरनमेंट में ये नए प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उनको डिस्पर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है. स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, रैपिड ग्रोथ. तो लार्ज अमाउंट में फूड को स्टोर कर सकते हैं और रैपिड ग्रोथ
कर सकते हैं. These are the advantages of asexual reproduction. Now these are the disadvantages. Little variation. This is very important disadvantage of asexual reproduction. Little variation, because they does not play the role in evolution. जब कोई वेरिएशन ही नहीं होगा तो इवोल्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होगा. तो अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट इज अनलाइकली, यानी कि जब कोई वेरिएशन नहीं होगा तो उनको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी. सो लिटिल वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट बैड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो अगर हम बार बार एक ही प्लांट से बनाते रहेंगे, अगर नए मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी एसेक्सुअल मेथड ही फॉलो करेंगे, तो जब उसमें नए करेक्टर नहीं आएंगे तो ऑफ स्प्रिंग में कभी कभी बैड करेक्टरिस्टिक जो पुराने प्लांट में थे, यानी कि पेरेंट प्लांट में जो बैड करेक्टरिस्टिक्स थी, तो वो अब उसकी ऑफ स्प्रिंग में चले जाती है. तो ऑफ स्प्रिंग में भी चली गई ये बैड हैबिट. तो इसीलिए ये कैसा है, इसका एक डिसएडवांटेज है. रेजिस्टेंस फ्रॉम अ डिजीज, जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं कि अगर किसी प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस पावर नहीं है तो उसके जो एग्जैक्ट कॉपी होगी ऑफ स्प्रिंग होगी उसमें भी डिजीज रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी, बिकॉज दे आर द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. लैक ऑफ डिस्पर्सल, बिल्कुल लैक ऑफ डिस्पर्सल, यानी कि इनको डिस्पर्स नहीं कर सकते. जहाँ पर पेरेंट प्लांट ग्रो करते हैं वहीं पर वो ग्रो कर पाएंगे, दूसरी जगह जहाँ पर उनको हम ले जाना चाहते हैं वहाँ पर हो सकता है वो सर्वाइव ना करें. तो कंपटीशन इनमें नहीं होगा, कोई कंपटीशन. अब लैक ऑफ डिस्पर्सल होगा तो कंपटीशन, बिल्कुल सॉरी, कंपटीशन होगा. क्यों? क्योंकि एक जैसे प्लांट होंगे तो कंपटीशन होगा, बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन किसके लिए होगा, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और लाइट के लिए होगा. तो इसीलिए कंपटीशन हो जाता है और कंपटीशन की वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं. यानी कि सेम रिक्वायरमेंट वाले प्लांट जो होते हैं वो साथ साथ ग्रो कम कर पाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंडिंग पोर्शन ऑफ this video. Thank you very much for watching this video. Students, if you like the video, then comment in the comment box, and also share and subscribe